Good morning. I am delighted to address Women and Women Forum today. Although this is for Women's Day and Women's Day is just over, but even then, I think every day is a Woman's Day because you cannot think of a house, of a home rather, without woman. And she works to such an extent, but she doesn't get all the credit. But when it comes to Women's Day, one always questions why Women's Day? Why do we require Women's Day? What is the meaning of women empowerment? Is there really any discrimination? Is there any violence? These questions we will answer in the process of this talk today. But the question is, with whom are women fighting? In 1869, one of the feminists said that our fight is not with man, the male, it is with the system. And the system over the centuries has become so vitiated against women that they have to take some action. Of course, changes are there. The modern woman is different from the woman who was a couple of decades back. Today, I need not say it, but women are in every field. We have celebrated on Women's Day, many women in different fields like creativity. Even they are in the army and some of them have got good awards. All these things have been made possible because of awareness, because of women's empowerment. I do not agree that only reservation for women will give them empowerment. It is the change in mindset that has to be wrought, that has to be made a reality. Mindset of whom? Of men as well as women. I tell you an interesting example that once I was addressing a class and I asked them, if there is domestic violence in your neighborhood, what would you do? Most of them said that they would like to go, and in certain cases they did go to solve the problem or to stop the violence. But it was the woman of the house who came forward and said, भाई साहब आप ये रहने दो, ये हमारे घर का मामला है. If women are not ready, how can we change? Now, what is the problem of women? Many people ask. I will tell you now a small game that we played in gender training session. I made two placards like this, one with stars and other with question mark. Now I distributed the cards randomly, made them stand in a circle and asked them to start walking. When they walked, I said, okay, now my instructions that all the people with stars, they will sit on the chair. The ones with question mark will stand. Then again, they started walking. All those with star can choose a companion with star and would laugh and talk. But those with question mark are not allowed to talk. People with star can enjoy, can eat, but people with question mark cannot do this. This went on, and at the end of the session, I asked them how did they feel. And I asked them to write on the board. Those who were with question mark, they said, we felt left out. We felt unhappy. Some said we felt inferior. But those with star, they said we felt very superior. We were happy.
Now I asked them to divide the society into these two groups, and we wrote on the board superior, inferior. Then under superior, they were made to write, and they wrote by themselves. Under superior, rich, poor, educated, uneducated, those underprivileged, privileged class, underprivileged class, men, women, boy, girl, and so it went on around a dozen different, say, bifurcations in the society they gave me. And then we said, this is how women feel inferior. They have been stopped from doing certain things. Now, let's think. When we say woman, which woman do we address? Which class do we address? Usually, what happens is we address our own class, educated, middle class, urban woman, working woman at that. But woman cannot be categorized in one category. No, there are women, farmer women, there are women of working class means menial class, and so on. There is so much of bifurcation, educated women, uneducated women. Among them also, there is a lot of difference. And one woman's problem is not another woman's problem. Another group, we can say. So, this is how law has to take its course in such a manner that all the sections of the society are covered. Just now, a couple of days back, IMF gave a statement that 27% of India's growth will be more in case women are given equal participation in developmental programs. I am not being a prophet of doom and saying that nothing has happened. नहीं, बहुत कुछ हुआ है और आज चेंजेस हमारे सामने हैं, मगर अभी भी सोसाइटी का माइंडसेट बदला नहीं है. मैंने ये देखा है, जब भी कई बार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, हिप्पा में है या और भी कहीं है, ज़्यादातर जेंडर कहने पे mostly women are represented. Women representation is there, I say, and only few men are there. No, women know their problem. Men do not know their problem, and so it is necessary to train men. Now the question is, what are the issues and concerns of women? And I will tell you a few. There are many, of course. First is discrimination. You will laugh and say, particularly modern girls will laugh and say, अरे डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है मैडम, डिस्क्रिमिनेशन तो अब है ही नहीं. एक क्लास में नहीं होगी, एक सेक्शन में नहीं होगी, मगर डिस्क्रिमिनेशन है. अब आपको बताते हैं डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है. लड़कों को, चाहे वो डल भी हो, उनको पढ़ाया जाता है. एजुकेशन के सेक्टर में लड़कियों को एक पर्टिकुलर क्लास के बाद पढ़ाई बंद कर दी जाती है. पर्टिकुलरली ये गाँव में, गरीब तबके में ये होता है. उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील वगैरह जैसी स्कीम निकाली थी. कुछ साल पहले आई वॉज अ मेंबर ऑन द बोर्ड ऑफ सर्व शिक्षा अभियान. उस वक्त जो फील्ड वर्कर्स आए थे उस मीटिंग में, उन्होंने बताया कि लड़कियों को ज़्यादातर स्कूल से हटा देते हैं, और जब उनको बोला कि भाई नहीं इनको पढ़ाओ, तो उनका कहना होता है कि इनको पढ़ा के क्या करना है, इन्होंने चले जाना है, इन्होंने वहीं चौका चूल्हा ही करते रहना है जहाँ ये जाएंगे. ऐसा माइंडसेट चेंज होने में टाइम तो लगेगा. अभी पढ़ रही हैं लड़कियां, गांव की लड़कियां भी बहुत आगे आई हैं. अभी हमने कितने ही एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, जब रिक्शा पुलर की कोई लड़की IAS भी बन जाती है, या इस तरह के तो आ रहे हैं, मगर ये और आने भी बाकी हैं, और भी होना बाकी है. डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इस तबके में नहीं है. एजुकेशन में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नॉवल है जिसको बुकर प्राइज मिला, अरुंधति रॉय का.
उसमें जो फैमिली है बहुत इलीट फैमिली है, और मगर पैसे वाले भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मगर वो लोग अपने बेटे को लंदन भेजते हैं पढ़ने के लिए, हालांकि बेटा पढ़ाई में बिल्कुल ही बुद्धू है, और लड़की को वो वही जो कुछ स्कूल है वहाँ डालते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, लड़की की साइकोलॉजी बिगड़ती जाती है, वो जैसे तैसे भाग के शादी कर लेती है, और उसके बाद उसके जो बच्चे होते हैं वो भी, उनको भी मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है, प्रॉब्लम चलती जाती है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम बोलते हैं भाई इनको कोई बाधा हो गई है, हम बोलते हैं इस फैमिली में कुछ क्या कुछ बोलते हैं ओपरा है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हैं, या और भी कई नाम हैं इस तरह के, मगर वो नहीं होता। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, चलती जाती हैं एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में। अब डिस्क्रिमिनेशन का एक और उदाहरण एक पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक बच्ची 7 साल की बहुत बीमार हुई, तो उनके पास खून नहीं था उसका ग्रुप का, तो उन्होंने फादर से कहा, डॉक्टर ने, वो लेबर था लड़का, उससे कहा भाई तुम्हारी बेटी को खून दे रहा है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच करता है, तुम खून दो। वो कहता है मैंने नहीं देना खून, ये तो शादी होके चली जाएगी, इसको दे के क्या करना है। अल्टीमेटली द गर्ल डाइड। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है। अब खाने में यूजुअली कई घरों में लड़कों को अच्छा हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है, एंड द गर्ल्स हैव टू मेक डू विथ वॉट एवर इज अवेलेबल। जब मैंने एक बार इसी तरह क्लास में ये बोला, जेंडर की क्लास में, तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया और कहा कि नहीं मैडम, हमारे यहाँ तो नहीं होता। आई सेड ठीक है, इट मे नॉट बी एट ABC, बट इट कैन बी एट अदर प्लेसेस। दूरदर्शन पे कई साल पहले, कई डेकेड्स पहले एक कहानी आती थी, उनमें से कहानी का प्रसारण होता था। दूध नाम की कहानी मुझे याद है। बहुत गरीब परिवार है और एक गाय है, जैसे तैसे दूध बेच के गुजारा करते हैं। 4-5 बच्चे हैं, उनमें से किसी को भी दूध नहीं मिलता, मगर रोज माँ एक छोटे से ग्लास में लड़के को दूध देती है, जबकि लड़कियां हसरत भरी नजरों से दूध की तरफ देखती रहती हैं। Now, if this is not discrimination, tell me what it is. महाराष्ट्र के गांव, सातारा डिस्ट्रिक्ट के गांव में एक बारी जब सर्वे हुआ तो उन्होंने पाया कि बहुत सी लड़कियों के नाम नकोशी है। नकोशी का अर्थ होता है अनवांटेड। जब उन लड़कियों से पूछा तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है, उनको नहीं पता था। जब उनको बताया गया तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने माँ बाप से आग्रह किया कि हमारा नाम बदला जाए। फिर बहुत सारी लड़कियों के नाम बदले भी गए, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था। अब इसके बाद हम आते हैं अनदर प्रॉब्लम, दैट इज वायलेंस। And we are not talking about violence in general, we know it. We are taking one particular segment, that is domestic violence. Domestic violence is not a figment of imagination. It is a reality. I'll show you one paper cutting. If you can see, now the grammar of domestic violence. What happens in domestic violence? Beating, hitting, right? Punching, all these things come under domestic violence, but it doesn't stop there. Domestic violence, even economic violence, not giving the woman sufficient money to spend at home, taking away her salary, this is happening. You may have heard many cases of your domestic servant. Most of the time, on the first when you pay her salary, उसका हस्बैंड आता है और दारू के लिए पैसे लेके चला जाता है। वो सारा महीना मेहनत करती है, बातें सुनती है, ताने सुनती है, और अल्टीमेटली हाथ में कुछ नहीं आता। ये इकोनॉमिक वायलेंस है। ये इकोनॉमिक वायलेंस में अभी बहुत कुछ है, हम बाद में किसी वक्त इस पर बात कर सकते हैं। आगे लीजिए साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकली भी अपने लड़की के माता पिता को बुरा बोलना, उसके मायके के लोगों को गालियाँ देना,
वहाँ से पैसे लेके आने को बोलना, ये भी बहुत बड़ा कॉज होता है जो लड़की को साइकोलॉजिकली हर्ट करता है। एक छोटा सा उदाहरण, मजाक देखिए, मजाक है, जोक है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ और बच्चे अपने बच्चे को लेके जू में जाते हैं। दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द केजेस ऑफ मंकीज एंड चिंपांजीज एंड अदर। हस्बैंड को मजाक सूझता है, वो बोलता है, उसको बोलता है योर रिलेटिव्स, ज़रा ज़ोर से ही बोलता है ताकि आसपास के लोग सुन ले। और इतने में वो लड़की हंसती है, उसकी तरफ देखती है और कहती है येस आफ्टर मैरिज। अब आप सोचिए, सारे लोग हंसने लगे और उसके बाद उस आदमी की क्या हालत हुई। रिटेलिएशन तो मिलता है आजकल। इसका एक नावल है शशि देशपांडे का। उस नावल में एक जगह बच्चा और 7-8 साल का बच्चा और उतनी ही बड़ी बच्ची 8-9 साल की बच्ची, वो आइसक्रीम खिला रहे होते बच्चों को। तो लेडी जो है वो लड़की को बोलती है, रेनू जल्दी करो, कम ऑन हरी अप। नाउ रेनू रिटेलिएट्स, शी सेज मामा यू ऑल द टाइम यू आर स्कोल्डिंग मी और चेकिंग मी, व्हाई नॉट राहुल। और वो उसको गुस्से के मारे गार के अंदर बैठ जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बैंग करती है। उस वक्त हीरोइन सोचती है उसकी माँ, वेल आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट माई मदर डिड टू मी, आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ अल्टीमेटली लेट अस थिंक, हाउ इज जेंडर फॉर्म्ड? Gender is formed unknowingly in the childhood of that little one. अब आप देखिए, आपका बच्चा गिर जाता है, लड़का रोने लगता है, आप क्या बोलेंगे? आप शायद यही बोलेंगे, अरे क्यों, उठ उठ, रोते हैं, तू कोई लड़की है। आपने क्या मैसेज दिया? आपने ये मैसेज दिया कि लड़कियां वीक होती हैं, वो रोएंगी, आप तो, यू आर अ मैन, यू आर नॉट गोइंग टू शेड टीयर्स, यू आर गोइंग टू टॉलरेट इट। लाइकवाइज देयर वॉज अ रिसर्च इन अमेरिका। उन्होंने एक कमरे में एक छोटे बच्चे को रखा, या रिकॉर्डिंग की होगी, जो भी होगा, और उसको रुला दिया। दूसरे बच्चे का कौन सा जेंडर है ये नहीं बताया। दूसरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे, उनको कहा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है, बताइए, आप लिखिए। अब बाद में जब उनसे पूछा तो कईयों ने कहा द चाइल्ड इज एंग्री, और भी इस तरह के स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए। और कईयों ने लिखा द चाइल्ड इज हंग्री, द चाइल्ड इज स्केयर्ड, डरा हुआ है। अब उनको पूछा, आपने हंग्री या स्केयर्ड क्यों लिखा, आपको क्या लग रहा है, कौन होगा ये? कहती लड़की होएगी। और जिन्होंने लिखा था एंग्री, इस तरह के स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव कई है, तो उसको पूछा, वो कहते हैं तो मेल चाइल्ड होना चाहिए। अब आप देखें कि माइंड सेट कैसे बना हुआ है, और इसी तरह आगे चलता जाता है ये माइंड सेट, पेरेंट्स से बच्चों से, बच्चों से आगे उनके बच्चों पे। बहुत साल पहले हिंदी में जब मात्रा सिखाते थे तो उसमें होता था आ की मात्रा, राम आ, आम खा, राधा उठ, झाड़ू लगा। आपने क्या मैसेज दिया कि राधा का काम, राधा को आम या अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके बाद ये जो प्राइमर में होता था ना, क्लास 1-2 के प्राइमर में या जो भी क्लास होगी, अब गवर्नमेंट ने वो बदल दिया है, इसको जेंडर सेंसिटिव बोला है, और इस तरह के वाक्य अब नहीं हैं हमारी पुस्तकों में। हम ये नहीं बोलते कि एकदम से चेंज होगा, चेंज होगा, मगर ये चेंज हमको कॉन्शियसली भी लाना है। और चेंजेस कितने हैं इस पे हम कभी और बात करेंगे, मगर इतना ज़रूर है कि चेंज जब आएगा तो सोसाइटी में एक तरीके का बैलेंस होगा। और बैलेंस ये नहीं है कि भाई लड़की अपना घर ही छोड़ के चली जाए या इस तरह के कोई एक्शन ले। बैलेंस ऐसा होना चाहिए बिहेवियर में दोनों तरफ से, और ये जब दोनों तरफ से बैलेंस हो सकेगा तभी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी बनेगी, और तभी सोसाइटी आगे इट विल बी एबल टू डेवलप। विद दिस आई क्लोज, थैंक यू वेरी मच।